Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about infectious disease. So let's start the topic. Now the first thing is that what are infectious disease? The disease caused due to infection spread by microbes such as bacteria, virus, fungi, etc. are called infectious disease. So the disease which are caused by any microbes ड्यू टू द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय माइक्रोब्स मीन्स माइक्रोब्स की वजह से जो भी डिजीजेज स्प्रेड होती हैं ओके सच डिजीजेज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज फॉर एग्जाम्पल यू कैन से चिकन पॉक्स एज यू ऑल नो कि चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस एड्स डेंगू फीवर कोल्ड okay, so these all diseases are caused by viruses. Now you can see the figure of chicken pox. Okay, this is the figure. Now some more, if you talk about some more infectious disease, for example like the diseases caused by bacteria से जो diseases होती हैं like typhoid, cholera, tuberculosis, then malaria, kala azar, they are caused by protozoa. Now let's see all these diseases in a tabular form में हम इसको study करते हैं, so it will be more clear to you कि कौन सी disease और उसका pathogen या फिर disease causing organism क्या है. Pathogens क्या होते हैं? The organism which cause disease, उनको हम pathogens बोलते हैं. Now the first is your common cold, influenza, AIDS, डेंगू फीवर. ये किससे होती है? ये वायरस से होती है. देन टाइफॉइड, कॉलेरा फीवर, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. काला आज़र, इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ नोन एज लीशमेनिया. एक्ने, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज़ स्टेफाइलोकोकाई. देन स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ नेम ट्रिपैनोसोमा. Elephantiasis, it is caused by a worm. Okay, so these are the few common diseases caused by microorganism. Now how are infectious disease transmitted? कैसे ये transmit होती हैं? Okay, now we will study about their mode of transmission. Now they are transmitted in many ways. बहुत सारे ways हैं इनके transmission के. The first is your droplet infection. अगर हम बोले like when the infected person it sneezes or कफ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, या खांसता है या स्नीज़ करता है, छींकता है आपके सामने, तो क्या होते हैं उसमें जो उसके वायरसेस होते हैं वो ड्रॉप्स के साथ बाहर निकलते हैं एंड they are present in the air, and if a person is very close to you and he breathes in that air, then he is infected by that virus or by that organism. Okay, like चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, ये जो होती हैं डिजीज़ेज़ ये एयर में रहती हैं. ओके, इनके वायरसेस जो हैं वो एयर में रहते हैं एंड दे when a person come in contact with such polluted air, he or she get infection. Now by touching an infected person, this is also another way, by touching the infected person. Suppose body में जो fluid निकलता है, fluid में क्या क्या हो सकता है? blood भी हो सकता है, saliva भी हो सकता है, sweat, urine. So infected person में क्या होगा? ये जो fluids होंगे उनमें infection causing organism होंगे और ये जो है जब कोई healthy person इनके touch में आएगा, ओके, इनको टच करेगा, ऐसे पर्सन की बॉडी को टच करेगा, सो ही विल बी इन्फेक्टेड. Now, touching the object or areas touched by an infected person can transfer the infection to a infected person and cause disease. Suppose, like you all know, presently if we talk about coronavirus इस समय फैला हुआ है. अब कहा जाता है कि घर में रहिए, ओके, कोई भी बाहर से सामान आए उसको टच ना करिए. क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो जो है इफ़ अ पर्सन इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, उसने कोई भी चीज़ टच की है तो उसके सरफेस पे वो वायरस रहेगा और अगर अननोइंगली हेल्दी पर्सन उसको टच कर देगा तो वो वायरस जो है थ्रू माउथ और थ्रू नोज़ और थ्रू ईयर्स वो अंदर मूव कर जाएगा. इसीलिए मास्क लगाने को कहा जाता है, बिकॉज दीज आर द एरियाज़, माउथ, नोज़ हुआ, ईयर हुआ, जहाँ से ये वायरस एंट्री कर सकता है. सो दिस इज़ अनदर वे कि हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सर्फेस को टच करके, इफ़ इट इज़ टच्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, देन ऑल्सो वी विल सफ़र फ्रॉम डिजीज़. और भी डिजीज़ेज़ होती हैं लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एड्स होता है, वो ये भी जो है फ्लूइड से हो जाता है ड्यूरिंग सेक्चुअल इंटरकोर्स. आप इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्चुअल इंटरकोर्स होता है तो दैट हेल्दी पर्सन मे बी इन्फेक्टेड बाय द डिजीज़. Now let's talk about the measures how to prevent such infectious disease. Now there are some practical ways which can be used to prevent
नाउ द फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स खाना, जो कि क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो हैं स्पेशली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो भी साइकिल होती है बैक्टीरिया की, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और बैक्टीरिया वहीं पे किल हो जाता है। मेंटेनिंग प्रॉपर हैंड हाइजीन, प्रॉपरली हैंड को वॉश करना। वैक्सीनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वैक्सीनेशन है, टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर एज के लिए हर वैक्सीन डिज़ाइन की गई है, तो उसको रेगुलरली लेना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे इन विच यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अवॉइड ट्रेवलिंग और गोइंग टू वर्क व्हेन यू फॉल इल। और दूसरा ये भी रीज़न है, व्हेन यू आर इल देन अवॉइड ट्रैवलिंग और गोइंग टू वर्क। हम कहीं जाएँ ना, ताकि और भी लोग जो हैं हमसे कांटेक्ट में अगर आते हैं तो वो इन्फेक्टेड ना हो। मेंटेन हाइजीन बोथ इन द बाथरूम एंड इन द टॉयलेट एरिया। ओके, नाउ दैट इज़ योर सैनिटेशन कंडीशंस। मेंटेनिंग हाइजीन, क्लिनलीनेस जो भी है, हर जगह क्लिनलीनेस होना चाहिए। कीपिंग योर किचन क्लीन बाय वॉशिंग ऑल द यूज्ड यूटेंसिल, कुकिंग एरिया बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ईच फूड। ओके, नाउ जो यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके भी यूटेंसिल्स को हमें अलग रखना चाहिए। ओके, सपोज़ ट्यूबरक्लोसिस है अगर किसी को, या कोई भी इस तरह की बीमारी है जो कम्युनिकेट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके, तो उस समय जो है यूटेंसिल्स भी एक सोर्स ऑफ मीडियम बन सकते हैं कम्युनिकेशन के। तो किचन को भी साफ़ सुथरा यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। While visiting patient in hospital, it is recommended to wear a mask, gown, and if possible, make use of sanitizing gels to prevent infection. Okay, whenever you are going to hospital, जब भी हम hospital जा रहे हैं, पेशेंट से विज़िट करने जा रहे हैं, तो उस समय भी हमारे पास नेसेसरी प्रिकॉशंस, नेसेसरी मेजर्स होने चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। ओके, सो ये है कुछ प्रिवेंशंस। और इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये ईजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।